ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖੋ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ when p-type semiconductor is kept at higher potential with respect to n-type semiconductor, p-n junction is said to be p-n junction is said to be forward biased. During forward biasing, external voltage opposes the potential barrier. Potential barrier. तो अगला पैरा बना लियो. Initially with the increase in forward biasing, potential barrier starts decreasing and for a certain value of forward biasing, potential barrier is completely eliminated. खत्म ही हो जाएगा एक तरह का. So now flow of diffusion of majority charges through the junction dominates and hence net current starts flowing through the junction. The direction of this current is from P to N and is called forward current. This current
is large in amount due to large concentration of majority charge carriers. तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦਸੀ ਪੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਤੋਂ ਐਨ ਜਾਣਾ ਹੋਲਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਐਨ ਤੋਂ ਪੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ नहीं रह जाएगी तो इस कारण पूरा करंट फुल करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और एक करंट फॉरवर्ड करंट होएगा फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर नूं दसनी तुसी P2 है और नोट करके लिख लो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग width of depletion layer is also decreased ਜਿਹੜੀ depletion layer ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ width ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ potential barrier ਵੀ ਘਟਦਾ तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ forward biasing ਦੇ ਦੌਰਾਨ potential barrier ਦੀ height ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਘਟਦੀ ਹੈ डिप्लीशन लेयर दी विड्थ ते की फर्क पैंदा घटदी है ये रिजल्ट्स याद रखना हुण लिखो बेटा रिवर्स बाइसिंग when P-type semiconductor is kept at lower potential with respect to N-type semiconductor then PN junction is said to be reverse biased. During reverse biasing, external voltage supports the potential barrier ਨੂੰ favor ਕਰਦੀ ਹੈ so with the increase in reverse biasing height of potential barrier is increased height of potential barrier is increased so diffusion of majority charge carriers
becomes negligible. Only minority charge carriers can drift through the junction. And it will constitute reverse current, तो फॉरवर्ड करंट ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस करके, रिवर्स करंट काले करके है ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस करके, and its direction is from N to P. Reverse current the direction, and its direction is from N to P. तो उल्ट हो गई ना ये डायरेक्शन। फिर लिखो बेटा as concentration of minority charges is very low, so drift current is very small, या रिवर्स करंट कर ली, so reverse current is very small. नोट करके लिख लियो, with the increase in reverse biasing width of depletion layer is increased. तो width increase हो जाएगी, ये याद रख लेना ना। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाए explain forward biasing, reverse biasing, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जिथे भी जेडे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस च P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर जिस जगह ते जुड़ रहे हैं उत्थे केड़ा जंक्शन बनना, PN जंक्शन बनना। और अगर आपां उत्थे कोई बैटरी नहीं लगाई तो उस जंक्शन दे थ्रू नेट फ्लो ऑफ चार्जेस की होना जीरो। पर जे आपां चाहते हैं कि फ्लो होए तो सानू उस जंक्शन नू की करना पैंदा, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बाइसिंग जैसी देखिया कि करंट ना मात्र ही होएगा, और ये फर्क इतना होएगा कि जेड़ा फॉरवर्ड करंट है वो होएगा मिली एम्पियर च, ते जेड़ा रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर च। मतलब रिवर्स करंट के मुकाबले फॉरवर्ड करंट 1000 टाइम्स मोर है, ज्यादा होंदा। तो ये कंसेप्ट है। हुण बेटा हेडिंग लिखो PN डायोड। PN जंक्शन जेड़ा सी ना वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो उत्थे होना ही होना है जिथे P और N ने जुड़ना वा। तो PN डायोड एक डिवाइस है। तो PN डायोड की है, इट इज ए टू लेयर डिवाइस, एरिया 2 लेयर्स है, which is
which is ਕੱਟ ਦਿਓ, which ਲਿਖ ਲਓ ਸਿਰਫ, is ਕੱਟ ਕੇ, which consists of two layer device which consists of p type semiconductor and n type semiconductor. मतलब पी एन डायोड बेसिकली की है, एक पी और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ਨੂੰ जोड़ के बनाया गया डिवाइस है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਅਸੀਂ देख रहे हैं पी और एन जुड़े हुए हैं, तो इट मींस पी एन डायोड ਦੇ अंदर ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ पी एन जंक्शन ਹੁੰਦਾ। और पी एन जंक्शन च ਅਸੀਂ देख चुके हैं कि एन साइड वाल पॉजिटिव और पी वाल नेगेटिव इमोबाइल चार्जेस होने। इस तो इलावा ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ हैं कि पी वाल होल्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ 1 2 और इधर इलेक्ट्रॉन्स की गिनती ज्यादा शो कर देने ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 1 2 ਹੋਲਸ, है ना। ਹੁਣ क्योंकि ਆਪਾਂ देख चुके हैं कि पीएन जंक्शन ਦੇ थ्रू करंट कितना होना, ਜਦੋਂ अनबायस्ड है, बाहरों कोई वोल्टेज नहीं लगाई तो करंट 0 होना। पर फॉरवर्ड बायसिंग कितना करंट होना, फॉरवर्ड करंट होना ज्यादा होना और उसकी डायरेक्शन P2N होनी, ते रिवर्स बायसिंग च N2P होना। हुण इत्थे आके भी थोड़ा ध्यान रखना पुत्तर। तो हुण जदों असीं वोल्टेज अप्लाई करनी है तो इन्हां साइडां तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक इधर नूं जुड़ना एक इधर, इनू असीं कह दिंदे आ इलैक्ट्रोड्स। पीएन डायोड दे विच 2 इलैक्ट्रोड्स है, ठीक है। और की देखते हैं कि डायोड 2 तरह नाल बाइसिंग हो सकती है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। हुण देखो बेटा, नॉर्मल सिचुएशंस दे विच ਜਦੋਂ ਪੀਐਨ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 0 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ डायोड है ਉਹਦੇ ਚ करंट कदों लंघेगा, ਜਦੋਂ फॉरवर्ड बायस्ड होएगी, ਤੇ करंट नहीं लंघेगा ਜਦੋਂ ਉਹ रिवर्स बायस्ड होएगी, ठीक है। और ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि डायोड कंडक्ट करेगी कदों, ਜਦੋਂ फॉरवर्ड बायस्ड, ਤੇ कंडक्ट नहीं करेगी कदों, रिवर्स बायस्ड। ਜਦੋਂ डायोड कंडक्ट करेगी तो उस करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फॉरवर्ड करंट, और उस करंट ਦੀ डायरेक्शन ਕੀ ਹੈ, P2N। ਹੁਣ ਇਸ डायग्राम ਚ देखो ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सिंबल ऑफ डायोड। ਆ देखियो, तो पीएन डायोड ਦੀਆਂ 2 इलेक्ट्रोड्स है, आ लिखतीਆਂ, आ साइड P है, आ N है। इन्हें कंडक्ट कदों करना, फॉरवर्ड बायसिंग वेले। करंट ਦੀ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ होनी, P2N। तो करंट की डायरेक्शन लिए ਅਸੀਂ ड्रॉ करते हैं एरो। तो आ साइड की है P और आ साइड, तो एरो P2N वाल जाना ना, आ पाता एरो। हुण एरो पाने तो बाद जेडी फाइनल शेप नजर आई तो इतना लग रहा जिदा एक पासे ट्रायंगल है एक पासे लाइन है, इदा ही नजर आने लग पे ना। तो आ की बन गया, सिंबल ऑफ डायोड। और बेसिकली ये सिंबल तैयार कितना होया, ओदा पिछे दी हिस्ट्री दसदी भी 2 इलेक्ट्रोड्स है ते एक एरो है।
ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ट्राइंगल वाली साइड की है P, कली लाइन N, तो ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ध्यान दियो पुत्र, ਜਿਹੜੀ डायोड है यही सिलेबस ही है साढ़े पासों, तो ये या तो होएगी फॉरवर्ड बायस ते या होएगी फॉरवर्ड बायसिंग दी निशानी की दसी तुहानू नहीं, वो तो हैगा करंट, पर वोल्टेज तो देखना P दी वोल्टेज ज्यादा इन द सेंस हायर होनी चाहिए है N तो, ठीक है। तो इस गल नूं असीं इदां भी कह दिंदे आ कि अगर P बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल P नाल जुड़ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल N नाल जुड़ जाए तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। जे बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल N नाल जुड़ जाए ते नेगेटिव टर्मिनल P नाल तां रिवर्स बायस, पर ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ, बैटरी ਦਾ पॉजिटिव टर्मिनल P नाल नेगेटिव N नाल, फॉरवर्ड बायसिंग उल्टा करते हो ਤਾਂ रिवर्स, पर उस ਚੱਕਰ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ डायोड है वो फॉरवर्ड बायस दो होनी जो बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव नाल नेगेटिव नेगेटिव नाल, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है P साइड की होनी चाहिए है एट हायर पोटेंशियल। वो थोड़ा बेसिक डेफिनेशन आपा लिखी, हुण ओहदा फायदा की मिलता सानू, तो ये नाल ही मैं कंसैप्चुअल प्रॉब्लम दस देना तुहानू। आ देखियो गल कोई मुश्किल नहीं, हुण जिद्दां मान लो पेपर दे विच आ गया MCQ फॉर्म च भी आ सकदा भी आ तुहाडे सामने बहुत सारिया डायोड्स बनातियां ने, तो आ दो टर्मिनल्स आ गए, तो इत्थे लिखता +2 वोल्ट, इत्थे लिखता +5 वोल्ट, इत्थे लिखता +3 वोल्ट, ये ग्राउंडिंग करती, इत्थे आ गया और इत्थे लिखता -2 वोल्ट, ठीक है। हुण जे तां असीं फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग इन्हां चों लभणी होए तां जे तां असीं सिर्फ ये गल याद कीती है कि बैटरी दा पॉजिटिव P नाल नेगेटिव N नाल, फॉरवर्ड है बैटरी दा पॉजिटिव N नाल ते नेगेटिव P नाल रिवर्स है, फिर इत्थे मुश्किल हो जाती। पर जे गल नूं आपां समझिया होए कि P साइड हायर पोटेंशियल ते होनी चाहिए तो फॉरवर्ड बायसिंग, N साइड हायर ते होएगी तो रिवर्स। हुण देखो पहले केस N दा पोटेंशियल +5 है, P दा +2, वड्डा कौन है +5, तो N हायर ते है, इसदा मतलब ये रिवर्स बायसिंग है। P प्लस N 0 है, ये ग्राउंडिंग दा सिम 0 वोल्ट, तो P 0 ते है, N
नेगेटिव दे है, नेगेटिव छोटा हुंदा जीरो नाल, समझ गए ना, ये फॉरवर्ड बायसिंग। तो अगर आपां पोटेंशियल वड्डा छोटा देख के करांगे तो आसानी नाल लग पैंदा फॉरवर्ड केड़ी रिवर्स केड़ी, ते जे पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर च रह गया फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो हम नेगेटिव के चक्कर जिथे फस जाना तुसीं यार नेगेटिव है भी ये फॉरवर्ड लिखी जाना, इदा नहीं है, इदा ही इधर आ 0 वोल्ट है, इधर नेगेटिव आया ही नहीं। तो कहने का मतलब फॉरवर्ड रिवर्स नूं कित्थों चेक करना, हायर ते लोअर पोटेंशियल वाले कंसैप्ट तो। तो आ साइड ते नोट कर लो अपने लिए भी, इदा क्वेश्चन आ सकते, कोई मुश्किल नहीं काम। अच्छा हुण सुनो दोबारा, अगर थानू कोई कहे व्हाट इज पीएन डायोड, तो लिखाता, फिर वो कह सकता नाल ही एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वो आपां पिछे तो वो वाला टॉपिक चक के इहदे नाल फिट कर देना, ठीक। फिर वो लिखेगा एक्सप्लेन इट्स फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, वो भी वही रिपीट हो जाना। पर इतना भी कह सकता हो, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड का मतलब की है पुत्र, इट इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ graphical representation of variation of current with voltage। भी जदों असीं डायोड दे अक्रॉस वोल्टेज नूं बदलदे हां तां करंट कितना चेंज हुंदा, तो वो वेरिएशन नूं नोट करना करैक्टरिस्टिक्स है। तो लिखो टाइप्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स लिखो पुत्र, it is forward characteristics, graphical representation of variation of
forward current with forward voltage. When forward voltage is increased, initially forward current increases by a small amount, but when forward voltage becomes equal and opposite to potential barrier, due to complete elimination of barrier, forward current increases exponentially. And the forward voltage beyond which forward current increases exponentially is called knee voltage. Knee voltage. कौन सी voltage? knee KN knee ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਚ ਗੋਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो उस तरीके नाल आ फॉरवर्ड वोल्टेज है और आ फॉरवर्ड करंट है। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਮੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ ये जरूरी है। ये वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विद फॉरवर्ड वोल्टेज है ग्राफ।
नेक्स्ट लिख लो पुत्र, नोट करके लिखियो। एज large forward current flows through as large forward current flows through a diode for small value of forward voltage, so forward resistance of diode is very small. डायोड ਦੀ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर मान लो मैनू P पॉइंट दिता ग्राफ तो वो कहे कि P पॉइंट ते रेजिस्टेंस कट के दसो, तो मैं की करना P पॉइंट दे कोरस्पोंडिंग वोल्टेज ते P पॉइंट दे कोरस्पोंडिंग करंट नोट कर लेना, क्योंकि ये ग्राफ फॉरवर्ड करंट ते फॉरवर्ड वोल्टेज लई है, इस करके मैं इनू VF ते IF लिख नोट कर लिया। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ VF ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ V/I, ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਿਹੜੀ? ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਰਹੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨੋਟ ਹੋ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस वेले असी चेंज इन वोल्टेज और ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग चेंज इन करंट ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਲਟੇਜ और ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, तो ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। इस थर्सडे नहीं है, ठीक है। तो लास्ट नोट कर लो अज लई,
conventionally forward current and forward resistance, forward current and forward voltage are taken to be positive. मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इन्नी गल लग जू समझ, बाइसिंग बारे पता लग गया सारा कुछ है ना, इनू चंगी तरह याद कर लो पुत्र। तो कल आंदे शॉर्ट टेस्ट दे दियो फॉरवर्ड बाइसिंग ते रिवर्स बाइसिंग वाला, करैक्टरिस्टिक्स फिर परसों रख लांगे ना, क्योंकि इदा याद हो जाने तुहाडे को। जिहड़ा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग दा लिखाया ना वो लिख दियो आगे जाके, वो ना याद हो जाए। तो कल नू टाइम थोड़ा लेट ही रखांगे ना, छुट्टी